How are you all? Fine. I just came back today. Yes, I have gone to Bhima Shankar. It's a Jyotirling. We are very blessed, that in Maharashtra we have 5 Jyotirling. So we have. How many are aware what is Jyotirling? Shivling, it is established by Ashish Shankaracharya. And basically we have 12 Jyotirling, just as we have 12 chakras. Prominent one, what we discuss in these sessions are 7 chakras. But actually we have got 12 chakras. 2 chakras are even below our body and 2 chakras are above our crown. And each of these Jyotirling is actually a realization of the soul. So, as we have to realize our 12 chakra, every chakra के अंदर एक realization है, जो हम चक्रियों क्लास में डिस्कस करते हैं कि every चक्र के क्या lessons हैं जो मुझे लाइफ में अडॉप्ट करना है। तो ये जो अलग अलग ज्योतिर्लिंग है, हर ज्योतिर्लिंग में कोई ना कोई रियलाइजेशन जो है वहाँ इनहेरेंट होती है। तो मैं जब ज्योतिर्लिंग देखती हूँ तो मुझे अलग नजर दिखता है। मुझे भीमा शंकर में मूलाधार की रियलाइजेशन दिखती है। अगर आप भीमा शंकर जाओ तो देखोगे बहुत सारी स्टेप्स हैं, 500 स्टेप्स हैं जिससे आप नीचे जाते हैं, तो वो मूलाधार चक्र की रियलाइजेशन है। और अगर आप त्र्यंबकेश्वर जाते हो तो वहाँ स्वादिष्ठान चक्र की रियलाइजेशन है। तो जैसे जैसे ऊपर जाते जाते हो ऊपर के चक्रों की रियलाइजेशन है। सो इन शॉर्ट मैं कहाँ गई थी, आई जस्ट अराइव, खाने के बाद फील कर रहा हूँ। सो टुडे द टॉक इज ऑन कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन हम लोग कहाँ से करते हैं? We do from our 5th chakra located on the throat. This chakra is two-sided. एक तरफ से हम बोलते हैं और एक तरफ से हम सुनते हैं. Is communication complete only by talking or we need both the things? We need both the things. क्योंकि आज हम बोलते रहेंगे तो जिसको हम समझेंगे नहीं कोई सुनेगा ही नहीं हमारी बातें. So communication is about speaking as well as hearing. And why at all do we need to communicate? Is it possible we say, no, I don't want to communicate. I want to live my life without communicating. Is it possible? No. So why do we need to communicate? Actually, हम communicate करते क्यों हैं? Let us first understand that very clearly. Okay. One is to express ourselves. Okay. Okay. Second. Yes. To get our end purpose met. आज communicate नहीं करेंगे तो we cannot get our goals met. Communicate नहीं करेंगे तो we cannot modify our relationships. We cannot communicate with our friends. We cannot communicate, with our family. That exactly how do we want our environment to be. So can we say that we use communication to modify our environment, and our environment comprises of our relationships. So we communicate to basically turn our environment in our favor. Yes, we communicate also to express ourselves. We communicate to establish our unique identity in this. हमारी जो unique identity है, हम सबके अंदर एक छिपा हुआ जीव है. जीव. It's like a prani. It's like an animal, unique animal. Every person has got a unique animal inside him. हमको एनिमल्स तो अलग अलग दिखते हैं, पर हम तो गलती करते हैं ना, जिसके कारण हम सफर करते हैं कि हमें इंसान भी सब अलग सेम दिखते हैं. हमें लगता है ये कर सकता है तो मैं क्यों नहीं कर सकता, मैं कर सकता हूं तो ये क्यों नहीं कर सकता. The day we understand कि हर पर्सन इज अ यूनिक एनिमल. जितनी पॉपुलेशन है वर्ल्ड की उतने यूनिक एनिमल्स ईच वन ऑफ अस इज. Because each one of us is a creator. We are a creator. And each one of us has come for a unique creation. तो हर पर्सन की एक यूनिक क्रिएशन होगी, चाहे वो इंजीनियरिंग में होगी, चाहे वो हेल्थ में होगी, चाहे वो आर्ट में होगी, म्यूजिक में होगी. हर पर्सन इज अ यूनिक प्राणी, अ यूनिक क्रिएशन. एनिमल्स आर क्रिएशंस.
इस दुनिया में आप जो भी देखते हो, पंच तत्व जो स्टैटिक चीजें देखते हो, इलेक्ट्रिसिटी, वाटर, फायर, एवरीथिंग इज अ क्रिएशन बाय अ क्रिएटर एंड वी आर प्लैनेट्स एंड वी हैव टू अंडरस्टैंड दैट ईच वन ऑफ अस इज यूनिक, वेरी डिफरेंट. इट इज समथिंग लाइक एक कमरे में अलग अलग जानवर बैठे हुए हैं, सबकी बोली अलग है और आपस में सबको कम्युनिकेट करना है. कोई मोर की तरह बोलता है, कोई गाय की तरह बोलता है, कोई बिल्ली की तरह म्याऊं करता है और हम सबको एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करना है. बिकॉज फाइनली हम जो क्रिएशन क्रिएट करेंगे, फाइनली वॉट एवर वी आर गोइंग टू क्रिएट इज गोइंग टू बी फॉर द बेनिफिट ऑफ एवरीबडी. That is why we have to learn to adjust with each other. We have to learn to accept each other. We have to learn to understand each other. Only then we will create a creation which can be used by everybody. Today I can't create a creation and become enlightened with something that only I love. Yes or no? And finally हमें creation create करना है. So we can't do like that. क्योंकि मेरे को तो ये प्रोडक्ट बहुत पसंद है, मुझे टॉय बहुत पसंद है, मुझे मिठाई बहुत पसंद है. आई वॉन्ट टू डू अ क्रिएशन बट ओनली आई लाइक इट, बस. बाकी सब लोग खाते हैं, पेट खराब हो जाता है, बाकी सबको अच्छा नहीं लगता है. अंडरस्टैंड, जितने भी अपने प्रोडक्ट्स बने क्रिएशन, दे आर फॉर द बेनिफिट ऑफ एवरीबडी. दैट इज व्हाई वी नीड टू लर्न टू अंडरस्टैंड अदर्स, मेक आवरसेल्फ अंडरस्टूड, बिकॉज फाइनली वॉट एवर क्रिएशन वी आर गोइंग टू मेक, इट इज फॉर द बेनिफिट ऑफ द एंटायर world. Okay? So basically, Vishuddha Chakra is the chakra in the throat. इसके 16 बटन्स होते हैं और विशुद्ध चक्र से हमारी ह्यूमन जर्नी शुरू होती है. दिस इज द फर्स्ट चक्र जहां से हम ह्यूमननेस रियलाइज करते हैं. विशुद्ध चक्र के ऊपर वी आर ऑल डिवाइन, वी आर ऑल गॉड्स. ये जो हमारे ऊपर जो सिर है ना, इट इज लाइक द लिंगम, और लिंगम जो है प्राकृति योनि के ऊपर होता है, विच इज अवर बॉडी. तो विशुद्ध चक्र इज द फर्स्ट चक्र ऑफ बीइंग अ ह्यूमन. विशुद्ध चक्र में रिसाइड करता है आपका सेल्फ, आपका सेल्फ, आपका वजूद रिसाइड्स इन द विशुद्ध चक्र. हर चक्र में आपका अलग अलग एस्पेक्ट रिसाइड करता है. मूलाधार में क्या रिसाइड करता है? हमारा शारीरिक एस्पेक्ट, आवर बॉडी. यस और नो? वी रियलाइज दैट आई एम द बॉडी बिकॉज ऑफ मूलाधार चक्र. व्हाट डज इट मीन दैट आवर बॉडी कॉन्शियसनेस रिसाइड्स इन मूलाधार? इसका मतलब क्या है? जो भी बॉडी रिलेटेड इश्यूज होंगे ना, दे विल अफेक्ट द मूलाधार एंड दे विल अफेक्ट द बॉडी. आज हमें लगेगा आई एम नॉट सपोर्टेड, आई डोंट हैव स्टेबिलिटी. जो बॉडी का इश्यू है, आपकी हड्डियां दर्द करेंगी. And हड्डियां are governed by the मूलाधार चक्र. स्वादिष्ठान में आपकी आइडेंटिटी डिसाइड करती है. आइडेंटिटी मीन्स विच यूनिक पर्सन यू आर. दैट इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम सेल्फ. सेल्फ इज एन एक्सटेंशन ऑफ योर आइडेंटिटी. आज मान लो, सपोज यू से दैट आई एम एन, माय आइडेंटिटी इज दैट आई एम अ इंजीनियर. सपोज दैट इज योर आइडेंटिटी. और आई एम अ हीलर, आई एम मदर टेरेसा. पर आपका जो सेल्फ है, इट इज कंप्राइजिंग एवरीथिंग. वो आपका बॉडी भी है, आपकी फैमिली भी है, आपका एजुकेशन भी है, आपके एक्सपीरियंसेस भी हैं. सेल्फ इज एक्चुअली एवरीथिंग. आइडेंटिटी इज योर यूनिक आइडेंटिटी, जिसके लिए आप दुनिया में आए. सो स्वादिष्ठान चक्र में डिसाइड करती है आपकी आइडेंटिटी. टुडे इफ यू आर नॉट एक्सेप्टिंग योर आइडेंटिटी, तो आपका स्वादिष्ठान चक्र में हेल्थ इश्यूज है. स्वादिष्ठान चक्र गवर्न्स योर मसल्स, योर किडनीज, योर लोअर बैक, योर डाइजेशन. तो यू विल फाइंड मेरे को लोअर बैक पेन हो रहा है, मुझे कॉन्स्टिपेशन हो रहा है, माय मसल्स एक, मींस आई एम वेरी, आई ऑलवेज फील टायर्ड. दैट इज बिकॉज आपकी आइडेंटिटी डिस्प्लेस्ड. आज आपको लाइफ में कोई भी फिजिकल हेल्थ इश्यू है, इट इज नॉट हैपनिंग बिकॉज मैं कंप्यूटर पे बैठ के चेयर पे काम करता हूँ, या मेरी लाइफस्टाइल ठीक नहीं है, मैं खाना टाइम पे नहीं खाता हूँ. नो, all your pains and aches are because of stress, and stress means it is because of a block chakra. तो आज आपको लोअर बैक पेन होता है, आपको मस्कुलर इश्यूज होते हैं,
योर डाइजेशन इश्यूज होते हैं, अंडरस्टैंड आपका स्वादिष्ठान होता है। उसके बाद वी कम टू मणिपुर चक्र लोकेटेड ऑन द नेवल। मणिपुर चक्र होता है जहां पर आपका माइंड रिसाइड्स है, माइंड। सी टुडे यू नो यू हैव गॉट मेनी एस्पेक्ट्स ऑफ योरसेल्फ। आपको अगर टिपिकल एग्जांपल देखना है तब खुद को नोटिस करो। बहुत बार लोग बोलते हैं मैं खुद के ही कंट्रोल में नहीं हूं, मैं करना चाहता हूं पर कर नहीं पाता। कौन करना चाहता है और कौन करने नहीं दे रहा? रात को सोच के सोते हो मॉर्निंग में मैं एक्सरसाइज पे जाऊंगा, मेरी हेल्थ खराब हो रही है। प्लान करते हो, अलार्म कौन बनाता है, अलार्म कौन रखता है, सवेरे कौन अलार्म बंद करता है और कौन गिल्टी फील करता है। डिसाइड करते हो मैं बिल्कुल नहीं खाऊंगा, बिल्कुल मीठा नहीं खाऊंगा, बिल्कुल सिगरेट नहीं टच करूंगा। कौन डिसाइड करता है और कौन पीता है और कौन किसको ब्लेम करता है और कौन गिल्टी फील करता है? डोंट यू सी दैट देयर आर मल्टीपल एस्पेक्ट्स ऑफ योरसेल्फ? यस और नो? डिसाइड करता है आपका सेल्फ, आपका अंदर से सोल डिसाइड करता है आई डोंट वांट टू डू दिस, दिस इज राइट फॉर मी। योर सोल नोस आपके लिए सही क्या है, और आपकी बॉडी कहती है नहीं मुझे और सोना है, तो बॉडी अलार्म बंद करती है। गिल्टी माइंड फील करता है कि अरे मुझे तो उठना चाहिए था, डिसिप्लिन इज समथिंग आई वांट टू डू, तो गिल्टी माइंड फील करता है, बॉडी अलार्म बंद करती है, सोल दुखी होता है। सो वी हैव गॉट एक्चुअली 4 एस्पेक्ट्स ऑफ आवरसेल्फ। पहला एस्पेक्ट है हमारा बॉडी, सेकेंड एस्पेक्ट इज अवर माइंड, अवर थॉट्स, थर्ड एस्पेक्ट इज अवर सेंसेस, हमारे प्लेजर पेन सेंसेस, एंड फोर्थ एस्पेक्ट इज ऑफ अवर सेल्फ। जब हम कहते हैं ना आई डू योग, चाहे वो तुम कोई भी योग करो लाइफ में, पतंजलि योग करो, यू डू एनी योग, ध्यान योग करो, कर्म योग करो, भक्ति योग करो, यू आर एक्चुअली यूनाइटिंग ऑल दीज। यू आर रियलाइजिंग आई एम नीदर द बॉडी, नीदर द माइंड, नीदर द सेंसेस, नीदर द सेल्फ। आप जब इनको एक दूसरे के साथ जोड़ते जाओगे, इनकी आइडेंटिटी को डिसॉल्व करते जाओगे, यू बिकम वन, एंड देन यू रियलाइज दैट वननेस with everything and everybody, and that is your journey to becoming a creator. So Manipur chakra में what resides? Your thoughts, your mind. और जब आपके thoughts and mind जो है, if there is an imbalance, you are not confident about your thoughts and opinions, जो भी इसमें imbalance होता है, so then the Manipur chakra gets blocked, and then people have diabetes. They have acidity issues, they have liver issues, pancreas issues. So every chakra जो है has got, like heart chakra has got the senses. Heart chakra has got the senses. And finally you have got the throat chakra. तो आपके throat चक्र में reside करता है आपका self, आपका वजूद। जब आप कहते हो मेरा नाम रमेश है, I am Ramesh, you say who is Ramesh? Is Ramesh this physical body? If I remove the physical body, do you think Ramesh will go? No. Even after Ramesh is dead, he is remembered. It means Ramesh was not the physical body. Yes or no? Can you say Ramesh is his mind? Many times Ramesh is out of his mind, still he is Ramesh. So Ramesh is not the mind. क्या रमेश उसके सेंसेस हैं, उसके प्लेजर्स हैं? रमेश को आज भी खाना पसंद है, रमेश लाइक्स चाइनीज, रमेश लाइक्स this food, Ramesh hates this type of attitude, Ramesh doesn't like this. Do you think these senses remain the same whole life? Do you think they remain the same? What you liked yesterday, you might not like today. You might not want it tomorrow. Or you might start loving it day after. So you are not your senses, because they are again changing. So finally जब आप कहोगे who is Ramesh? So he is not the body, he is not the mind, he is not the senses, because he exists beyond that. So you will say Ramesh is the self. जब आप कहते हो मैं, that is the self, आपका वजूद. And basically in communication, एक self दूसरे self से बात करता है. Communication में एक self दूसरे self से बात करता है. And today the talk is why one self is not able to talk to the other self. Why is it कोई मुझे कुछ भी बोल के चला जाता है? Why I am not able to communicate? Why I prefer to keep quiet? Why after
After an argument, I think मुझे ये बोलना चाहिए था, ये करना चाहिए था. Why all the time I'm curbing my thoughts? Why I'm curbing my speech? मुझे डर लगता है कि मैं बोलूं तो कोई हंस ना दे. क्या ऐसा होता है कि ऑफिस में I'm not able to communicate, I'm not able to express, because today is the age of communication. If you're not able to communicate, however good you are, your boss is not going to recognize you. Yes or no? अब हीरा भी बड़ा होगा, जब तक वो चमकेगा नहीं, कोई भी उसको रियलाइज नहीं करेगा. So today we have to realize why I am not able to communicate, and it's a serious issue because आज मैं घर में communicate नहीं कर पाता हूँ. People are feeling that I'm not able to communicate in my house. मेरी कोई सुनता ही नहीं. People don't listen to me. But understand, आज ये पूरा जो संसार है ना, it is only you are the sun of your sansar. As if you feel people don't understand me, it doesn't mean you are surrounded by wrong people. Changing the people is not going to help. जो नया set of people आएगा, they will be carbon copies. They will be carbon copies. So don't look at outside. Don't see my family is like this, or my career is like this, or my friend is like this, or this person is like this. Everybody has become like this because of you. Just change yourself and automatically they will change. They will change. Automatically they will change. You have to only change yourself. So, how to change ourselves? We have to first understand what are the blocks, why we are not able to communicate, and what are the bad effects of communication. So, let us talk about it. So, let us typically take what are the reasons we are not able to communicate. Let us start. एक क्या रीजन हो सकता है कि जो हम फ्रीली अपने आप को कम्युनिकेट नहीं कर पाते. हमारा गला इतना नहीं खुला है, इतना नहीं खुला है कि हमारा जो मन में आए हम बोल दें. उसके क्या नुकसान हो सकते हैं? जो मेरे मन में आए मैं बोल दूं, उसके क्या नुकसान हो सकते हैं? What would be the harm if I want to speak exactly what is coming in my heart? Because actually that is communication. जब आप जो मन कर रहा है easily आपके मुंह में आए and you speak out, that is true communication. And today why we are not able to communicate? आप ऑफिस में you are inhibited, घर में you are inhibited, friends में you are inhibited, and you are telling yourself, you are consoling yourself कि मेरा nature जो है वो थोड़ा shy. Understand, nature is never shy. We all love to talk. We all love to communicate. पर आज आपको लग रहा है कि मेरा nature shy है. It means आप खुद के घोड़ों पे लगाम लगा. First is that why we don't want to communicate, because we have a fear that what if I say my truth, I might hurt others. Okay? What is the second fear? आज मेरे मन में जो आया मुझे अच्छा नहीं लगा. What if I speak? You know, what will you say? What if it is not accepted? What is the second step of not being accepted? What if he retaliates? What if he leaves me? क्या वो मुझे छोड़ के चला जाए? मैंने तो अपने दिल की बात कह दी. मुझे अच्छा नहीं लग रहा है कि वो मेरे साथ ऐसा बिहेव कर रहा है. बट मुझे डर है कि what if he leaves me? What if he retaliates? What if हमारी फ्रेंडशिप में खटास आ जाए? What if मेरे को ऑफिस में ये चीज नहीं पसंद है? I go and tell the boss. What if he takes it in a negative way? And what if he takes a negative action? Yes? So one is this fear. That fear of rejection, fear of hurting others, yes, or you can say fear of disapproval. Okay. Next, what is the fear? Why we are not able to speak our truth? Yes. One is lack of confidence. कि ऐसा तो नहीं I will be ridiculed. सब हंसेंगे. Yes, it's a lack of confidence. It is lack of, it's a fear of being ridiculed, or you can say it is a fear of disapproval. It's a fear of disapproval. People are not approving me. So one is lack of confidence. What else? Fear that I have lack of knowledge. Fear that I lack knowledge.
Anything else? Why we are not able to speak out? But it did not go through, or the other person did not understand. Yes. It is a fear of not being heard or fear of being misunderstood. Okay? So पहले तो ये realize करो कि मेरे अंदर ये सब डर है, मुझे बहुत डर है, and basically understand ये they are only fears, and fears are created by ego. हमारे अंदर विशुद्ध में एक ईगो होता है, एंड अंडरस्टैंड हर जिंदगी में हर चीज को रियलाइज करने के लिए पहले हमें ईगो के बैरियर से पास होना होता है, एंड देयर इज एन ईगो ऑफ द सेल्फ. एंड ईगो ऑफ द सेल्फ का क्या ट्रिक होता है? इट मेक्स यू डिपेंडेंट ऑन द अदर्स. इट मेक्स यू डिपेंडेंट ऑन अदर्स. डोंट स्पीक, अदरवाइज दिस पर्सन माइट बी हर्ट. डोंट स्पीक, अदरवाइज यू माइट लूज दिस पर्सन. You might win, you might have negative effects, you might lose favor of this person, you might be ridiculed, and you are dependent on this person. So सबसे पहले to remove these fears, we have to remove all dependency. We have to first release dependency. कि आज मैंने बोल दिया और मेरा जॉब छूट गया, तो this is the only job in this world. आज मैंने इस फ्रेंड को सच बोल दिया और फ्रेंड नाराज हो गया, दिस इज द ओनली फ्रेंड इन दिस वर्ल्ड. आज मेरे बोलने से इतना बड़ा बवाल हो जाएगा कि आई विल लूज. सबसे पहले वो फियर को रियलाइज करना पड़ेगा कि इफ आई स्पीक माई ट्रूथ द पर्सन विल बी हर्ट, बिकॉज अंडरस्टैंड नोबडी इज इंपॉर्टेंट इन दिस वर्ल्ड मोर देन यू. आज आपने एक फ्रेंड को तो खुश कर दिया, but you have not learned the lesson in this world. Lessons will become tough, tough, tough. आज आप 5th स्टैंडर्ड में हो या कोई भी क्लास में हो, आप पास नहीं होते, एग्जाम सप्लीमेंट्री 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 देते रहते हो. सो अंडरस्टैंड, यू कैन नॉट पास द ग्रेड, यू हैव टू स्पीक योर ट्रूथ. एंड उसके लिए सबसे पहले यू हैव टू रियलाइज आई हैव गॉट डिपेंडेंसी. आई फियर लूजिंग दिस पर्सन. आई मे बी डिपेंडेंट ऑन दिस पर्सन इमोशनली. आई मे बी डिपेंडेंट ऑन दिस पर्सन physically. I may be dependent mentally. I may be dependent financially. सबसे पहले वो डिपेंडेंसी को रियलाइज करो. I am dependent, and then realize, no, are you actually dependent on anybody? Are you actually dependent? Are you actually? You have to first see that fear, and you have to release that fear of dependence. I don't want to be dependent. Finally, I am only answerable to one. Prakriti, I'm only answerable to consciousness. I have to learn the lesson. Consciousness will take care. You have to trust. ये वर्ल्ड जो है ना, ये इतना ज्यादा सिस्टमैटिक है. इस वर्ल्ड से ही फिजिक्स आई है, इस वर्ल्ड से ही केमिस्ट्री आई है, इस वर्ल्ड से ही मैथ्स आई है. If you don't learn the lesson, bigger lesson will come, bigger challenge will come. So सबसे पहले realize I am not dependent on anyone. I'm going to release this fear of losing, and I'm going to speak my truth. और सबसे पहले समझो, जो आप truth कह रहे हो, see we are talking about situations where you have to change your environment in your favor. आपको अपना environment बदलना है आपके हिसाब से. Suppose you are with a friend and you feel that person is taking advantage of you, or he is doing certain things you don't like, or maybe the way he is speaking, the way he is doing, it has to change. But understand, ये आपका fear है कि if I speak, he will be hurt, he will feel bad. ये आपका definition है कि what I am telling is bad, what I am telling he will feel bad. ये आपका अंदर का definition. Yes or no? You have to understand that in the higher light of truth, there is nothing bad, there is nothing wrong. आज अगर बच्चे की पढ़ाई के लिए आपने एक दिन उसको डांटा या उसको स्कोल्ड किया और फाइनली बिकॉज ऑफ दैट ही बिकेम अ बेटर चाइल्ड, अ बेटर पर्सन. टुडे मे बी यू हैड अ फ्रेंड एंड यू गेव हिम अ वेरी टफ एडवाइस, मे इट हेल्प हिम नाउ फाइनली. आज वाल्मीकि भी जो सेंट बने, वो नारद ने आके उन्हें एडवाइस ही तो दी थी ना कि तुम जो मार रहे हो, काट रहे हो, इतने लोगों का मर्डर कर रहे हो, व्हाई यू आर डूइंग? ही सेड आई एम डूइंग बिकॉज ऑफ माय फैमिली. मुझे तो पेट भरना है.
मैं नहीं देख सकता कि मेरी फैमिली जो है भूखे मरे, तो फाइनल से कहा जाके अपनी फैमिली से पूछो, आर दे रेडी टू डाई फॉर यू? यू आर डूइंग सो मच फॉर देम, इतने सारे नेगेटिव कर्म ले रहे हो, आर दे रेडी टू डाई फॉर यू? तो वाल्मीकि को तो वाइफ कहती भाई मैं क्यों करूं तुम्हारे लिए, तुम कर रहे हो। बच्चा कहता मैं तो अभी यंग हूं, मैं क्यों करूं पापा आपके साथ, व्हाई शुड आई गो विद यू, व्हाई शुड आई डाई विद यू? सो ही फील्स सो हर्ट, सो देन ही कम्स एंड ही रियलाइजेस कि मैंने कितने खराब कर्म किए एंड ही डिसाइड्स टू लीव द। सो अंडरस्टैंड कि ये आपका डेफिनेशन है कि मैं इसको ये बात कहूंगा, he will feel bad about it or he will feel sad. You have to release that definition that this is bad or this is less और ये मेरे को नहीं बोलना चाहिए, उसको बुरा लग जाएगा। ये आपका डेफिनेशन, आपका काम है कि अगर आपके अंदर एक तीव्र इच्छा हो रही है that I have to tell this person this, I can't take it anymore, I have to change this, the way my spouse is behaving or the way my mother-in-law is talking to me or the way my boss talks to me or the way my friend behaves with me. If it is coming in front of you, the words have to go out. For this, the fear of dependency has to be released. The fear of losing the person has to be released. When you release that, of course there are many other things which will be talking, जो इसके साथ आएगा। ऐसा नहीं है मन में कुछ आया और बस बोल दिया, मन में गाली आई फटाफट गाली बोल दी, वो भी हम बात करें। पर पहले ये समझना चाहिए वी शुड नॉट इनहिबिट आवरसेल्फ, बिकॉज जब हम इनहिबिट करते हैं वी गेट फ्रस्ट्रेशन, वी गेट हेल्पलेसनेस, वी गेट थ्रोट चक्रा ब्लॉकेज, हमें थायराइड हो जाता है, हमें इंसोम्निया हो जाता है, नींद की प्रॉब्लम हो जाती है, कंधे दर्द करते हैं। इज इट अ गुड प्राइस टू पे फॉर इट? यस। Why should we suffer? Let the other person suffer. So we have to first speak our truth. और second जो था कि we have a fear because we feel we don't have enough knowledge. Who are you to say that? Who are you to say that? Understand, जिस दिन आप समझोगे हम सब अलग अलग जानवर हैं. You cannot judge the intelligence of a fish because it cannot fly. आज हर पर्सन हर चीज नहीं कर सकता, पर आप अपना काम तो कर सकते हो ना। Yes or no? You can do your work, no? Every person is unique. You might be a housewife. You might be a, you might have a tailoring shop. You might be a corporate lady traveling. You might be any being. What does it matter? So आपके अंदर जो fear है that I don't have enough knowledge, मेरे में उतना ज्ञान नहीं है, ये दिस इज अगेन योर डेफिनेशन, इट्स अगेन योर डेफिनेशन। आज अगर वो पर्सन आपके लाइफ में आया है पार्टनरशिप विद यू कैन डेफिनेटली कम्युनिकेट। सो दिस फियर दैट आई हैव लेस ज्ञान, और मे बी व्हाट इफ आई एम रिडिक्यूल्ड, व्हाट इफ आई एम शेम्ड, व्हाट इफ आई एम डिसअप्रूव्ड, all these fears को you have to look in the front and you have to relieve. Maybe you were ridiculed one time. हो सकता है आप छोटे थे और आपने टीचर को हाथ खड़ा किया और टीचर ने आपको स्टूपिड कह के बंद कर दिया हो। It was उस समय, it was that time, but not now. तो ये जो अंदर से fear है of being ridiculed or shamed, you have to first realize it and then you have to release it. Because again I repeat, communication is when a self talks to a self. Communication की properties हैं, you both are equal. जिस दिन we realize that actually all of us at the base level we are all souls. हम सब souls हैं and we all have come for a unique purpose. It is just like एक शरीर में जो हाथ है, उंगलियां हैं, आंख है, they are all different parts of the same शरीर, but they are the same शरीर. Yes or no? क्या आप कह सकते हो कि उंगली जो है वो आंख से छोटा काम करती है? क्या आप कह सकते हो किडनी का फंक्शन हार्ट से कम है? क्या आप कह सकते हो कि बॉडी में सबसे इंपॉर्टेंट जो ऑर्गन है वो हार्ट है? कैन यू से दैट? कैन यू से दैट? नो, कोई भी ऑर्गन जो है उसका उतना ही महत्व है। सो अंडरस्टैंड कि जैसे हमारे शरीर में अलग अलग जो ऑर्गन्स हैं,
एंड एवरी ऑर्गन का एक एक यूनिक महत्व है। हाथ जो है वो सामान उठाता है, आंख जो है वो देखती है, नाक स्मेल करती है, खाना डाइजेस्ट करता है पेट, हार्ट जो है ब्लड सर्कुलेट करता है। एवरी ऑर्गन हैज गॉट अ यूनिक फंक्शन। प्लीज अंडरस्टैंड ईच वन ऑफ यू हैज गॉट अ यूनिक। Earth will not be complete without you. You have not come by accident. You have been sent on purpose, and it's a very unique purpose. आप देखो, एक पर्टिकुलर रेशियो के बच्चे डॉक्टर बनते हैं, पर्टिकुलर रेशियो के बच्चे इंजीनियर बनते हैं, पर्टिकुलर रेशियो के बच्चे इधर जाते हैं। हर पर्सन का जो एक्चुअल नेचुरल इंटरेस्ट है, आप देखो गर्ल एंड बॉय का रेशियो कुदरत कैसे मैनेज करती है। यस और नो? आज अगर वी डोंट इंटरफियर बट गर्ल एंड बॉय का रेशियो इक्वल होगा। हाउ इज इट पॉसिबल? हाउ यूनिवर्स इज क्रिएटिंग एग्जैक्ट नंबर ऑफ पीपल एज पर द रिक्वायरमेंट। कोई बच्चे के अंदर जाके डालता थोड़ी है कि देख तू डॉक्टर बनना, डॉक्टर में बहुत ज्यादा पैसा है। बच्चे के अंदर आवाज आती है, आई वॉन्ट टू बी आर्टिस्ट, आई वॉन्ट टू बी दिस, आई वॉन्ट टू बी अ डॉक्टर। आवाज आती है, वो आवाज कौन डालता है? अगेन प्रकृति। प्रकृति इज रन बाय सिस्टम्स। So we have to understand this part. So first fear is that fear of hurt or rejection, which can be removed by understanding that the self communicates with the self. At the soul level, we all are same with zero dependency on anybody. But to realize zero dependency on anybody, you have to first see where you are dependent. Whether on your company, whether on your friends, whether on your spouse, whether on your colleagues. You have to see that dependency and release it. Release का मतलब ये नहीं है कि you will go about breaking friendships. You will just not be weak. आप उनके सामने कमजोर नहीं होगे। आप illusion में नहीं होगे कि मेरी जरूरत उनकी जरूरत से ज्यादा है। He doesn't need me, I need him. जिस दिन आप वो illusion से बाहर आ जाओगे, you can communicate. Communication जो चक्र है विशुद्ध, उसका मीनिंग है विशुद्ध। What is the meaning of शुद्ध? ये जो चक्र है, एक्चुअली ये चक्र तब खुलता है जब आदमी एक्चुअली बिल्कुल प्योर हो जाए। प्योर। आज अगर आपके मन में कोई भी कुटिल बात है, एनीथिंग इज कुटिल इनसाइड यू, यू नो, आपका चक्र देख लीजिए। ये चक्र क्यों ब्लॉक होता है? अंडरस्टैंड। ये चक्र ब्लॉक होता है। सपोज we don't live our words. आज हमने किसी को शब्द दिया, but we don't live our words. वो चक्र ब्लॉक। आज आपको कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन में इश्यू आ रही हो, नोटिस करो कि मैं लोगों को तो कमिट कर देता हूँ, बस मैं अभी कॉल करने वाला हूँ 1 घंटे, आज आ जाऊंगा, पक्का आ जाऊंगा, मैं ये कर दूंगा, एंड देन वी डोंट केयर, वी इग्नोर, वी फॉरगेट। जब तक आपने अपना एक एक शब्द ऑनर नहीं किया, मैंने बोला है या तो जाऊंगा या फोन करके बोलूंगा मैं नहीं आ सकता, तब जाके पूरी तरह ओपन। सो विशुद्ध चक्र इज चक्र ऑफ ऑनर, कीपिंग योर वर्ड्स। आज जो है ना, खंजर से उतना दर्द नहीं होता जितना कोई पर्सन आपको शब्द जो बोलकर प्रॉमिस करके जो बिट्रे करता है वो ज्यादा दर्द करता है। यस और नो? बिकॉज हम शब्द से ही एक पर्सन को जांचते हैं, भापते हैं, नापते हैं। We judge a person only from the word. So word is something which we have to keep. शब्द, और ये शब्द रखना कोई डिफिकल्ट बात नहीं है। जिस दिन हम रियलाइज कर लेंगे कि आज लोग मेरे को क्यों नहीं समझ रहे हैं, why people are not understanding me, why I am having communication, I am not keeping my words. And the day you decide, अगर मैं बोलूंगा और प्रॉमिस करूंगा, I will do it. Is it difficult? Is it difficult? कि आज हमने किसी को प्रॉमिस कर दिया या किसी को बोल दिया कि yes I will do, क्या उसको फॉलो थ्रू करना is it difficult? You can do it. It is a respect. You honor the self of the other person. You wait for that. He waits. And when you don't understand, when you don't do it, he will wait 1 time, 2 time, 3rd time he will not take you seriously, and then you wonder why my child is taking me very casually. मेरा बच्चा मेरी बात क्यों नहीं सुनता है?
मैं बोल रही हूँ पढ़ाई कर, ही इज नॉट लिसनिंग, बिकॉज आपने बच्चे को इतनी बार प्रॉमिस किया, यू डिडंट डू इट। यू प्रॉमिस योर चाइल्ड सो मेनी टाइम्स। अब बच्चे के माइंड में हो गया है, मम्मी बोलती है करती कुछ नहीं है। सो अंडरस्टैंड, हम रियलाइज नहीं करते, पर छोटे छोटे इंसिडेंट में पीपल आर लूजिंग ट्रस्ट। इट कुड बी इवन अ स्मॉल चाइल्ड, इट कुड बी योर स्पाउस। आपने अपने स्पाउस को कितनी बार बोला यस मैं करूंगी, ये आई विल डू दिस और दिस दैट, एंड देन यू जस्ट इग्नोर्ड इट, यू फॉर यू इट वाज नॉट इंपॉर्टेंट, एंड नाउ यू आर वंडरिंग व्हाई ही इज नॉट लिसनिंग टू मी। जैसे कौन सी कहानी थी, एक बच्चा जो बोलता था बार बार शेर आया शेर आया, एक्चुअली शेर आया, कोई नहीं आया उसको बचाने। इट्स द सेम थिंग। यू कांट से कि मैंने इस बार थोड़ा जोर से बोला। सो इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आज से टेक अ प्रॉमिस। आज अगर मैंने किसी को कुछ भी कमिट किया, इधर कमिट नहीं करूंगा, बोलूंगा आई विल ट्राई, बस आई विल ट्राई बोल, दैट इज बेटर। इट कुड बी इवन योर कमिटमेंट टू योर ड्राइवर। आज अपने ड्राइवर को बोला अगले महीने में तेरी पगार बढ़ाऊंगा, एंड देन यू डिडंट केयर, क्या है, कहाँ जाएगा, क्या जॉब मिलेगा, यू इग्नोर्ड इट। अंडरस्टैंड, वो अभी काम कर रहा है, 1 महीना 2 महीना, 3rd महीना यू विल वंडर मेरे को इतनी जरूरी बात थी एंड ड्राइवर इज लेफ्ट। आप कोरिलेट नहीं कर पा रहे हो, बट ही हैज लॉस्ट ट्रस्ट, ही हैज लॉस्ट ट्रस्ट। आपको लगा इतनी बड़ी बात नहीं है, आई विल डू इट लेटर, बट ही हैज लॉस्ट ट्रस्ट। So number 1, it is not difficult. Decide to honor your words every time. Either say, I will try, I will confirm, I'm not sure. That is still better. But if you have said, I will come, or I will do, I promise, you have to honor the words. So विशुद्ध चक्र जो है, ये आपको actually pure करता है. You are able to communicate with the other person. जब आप अंदर से प्योर होते हो, एट द सेम टाइम दूसरा पर्सन की, आपकी नजरों में दूसरा पर्सन भी प्योर हो। इन विशुद्ध चक्र, इफ यू वांट टू कंप्लीटली कम्युनिकेट विद द अदर पर्सन, आप अंदर से क्लेंस होने चाहिए, पर आपकी नजर में दूसरा पर्सन भी क्लेंस होना चाहिए। अदरवाइज यू कैन नॉट अंडरस्टैंड द अदर पर्सन एंड यू कैन नॉट मेक योरसेल्फ अंडरस्टूड। Now, what is the meaning of pure? अपने आप को pure. Yes. What is the meaning of making ourselves pure? Because today, understand. Suppose many people have. Suppose you have issues in communication with your office staff. आपको लगता है कि they don't listen to me. मैं इतना बोलता हूँ ये मेरी बात नहीं सुनते. So understand. In this, you have to purify yourself and you have to purify them. Now, what is the meaning of purify them in your nazar? जब तक आप सोचोगे कि ये मेरे साथ, they are coming with me for a particular मतलब, ये सब जो मेरे साथ आए हैं सब मतलब ही है। जब you have doubt on the relationships, you have doubt in the unions. Today, if you doubt your spouse, you doubt your friends, you doubt your colleagues, that हो सकता है ये मेरे को backstab करे, ये मतलब ही मेरे साथ है, इसको मेरे से पैसे मिल रहे हैं या ये मेरा फायदा उठा रहा है। जब तक हमारे अंदर डाउट होगा, we can't communicate. If we have doubt on the other person, we can't communicate. Today, why there is misunderstanding? आज घर में क्यों misunderstanding हो रही है? Because you don't trust. जो तुम्हारे साथ रह रहा है, you have doubt. So now let us try to find कि हमारे क्या क्या डाउट है relationships, जिसके कारण we want good communication but we are not able to communicate because we have doubt. So what can be the reasons for doubt? Let us start thinking. क्या reason हो सकता है that we doubt our relationships? It could be relationships in the house, with our children, with our family. It could be relationships with our society, relationships with our friends, relationships in our workplace. हम डाउट क्यों करते हैं? क्या चीज का डाउट करते हैं? एक तो हम डाउट करते हैं बॉस के साथ कि ये जो है ना, ये मेरा फायदा नहीं देखता है, इसको बस है कि मैं काम कर दूं पर मेरे को एक्चुअली प्रमोशन नहीं देने वाले।
एक तो ये डाउट होता है कि ये मुझे प्रमोशन तो देने नहीं वाला है, एंड यू डाउट योर बॉस. Next, whom do you doubt? Okay, one could be insecurity. That probably this person is going to do me some harm. What type of harm? क्या कर सकता है? गन लेके ऐसे. What can he do it? चीट. क्या करेगा चीट? आप बैठे, आपको नहीं पता लगेगा, आपको वॉलेट निकाल के उसमें से पैसे निकालेगा. What is cheating? सोचो, चीटिंग क्या है? क्या चीट करेगा? आपका फ्रेंड, आपका बॉस, आपका स्पाउस. Why do we have doubt? वो क्या कर लेगा? क्या चुरा लेगा? क्या हटा लेगा? हमारा हाथ खींच के ले जाएगा? क्या ले जाएगा हमसे? क्या? Okay. एक है कि दूसरे को बोल के मेरे बारे में बुरा बोल देगा, ये बुरा है, और दूसरा पर्सन समझ भी लेगा, सुन भी लेगा. उसको ये नहीं लगता कि मैं भी बोल सकता हूँ, मेरे बारे में तुम हुआ है. I also have a mouth. वो बोल सकते हैं, हम भी तो बोल सकते हैं ना. अब ये तो नहीं बोलोगे कि आई डोंट वांट टू डू इट, ही वांट्स टू डू. आप भी तो कर सकते हो ना. उसको ये डर नहीं है कि आप भी कर सकते हो. कहते ना जिसके घर कांच वाले हैं तो वो शीशा क्यों मारेगा दूसरे. एक तो ये डर है, आई अंडरस्टैंड, ये फियर है. What if he speaks wrong about me? Means he is more powerful than me to speak wrong. This is what we are telling. ये कर सकता है बुरा, मैं बुराई नहीं कर सकता. और हम इसको रूप देते हैं कि मेरी बुराई का असर नहीं होगा, कोई मेरी बात नहीं सुनेगा, पर लोग उसकी बात ज्यादा सुनेंगे. तो एक तो ये हो गया. ओके, इन व्हाट वे डू यू डाउट? व्हाट वे अ पर्सन विल डाउट हिमसेल्फ? Or rather, he is more judgmental. Okay, judgmental about self. Yeah. Okay. Yes, we'll talk about it. So yes, basically, when a person has doubts about himself. Now, what is the meaning of doubt? Doubt means कहीं से मैं कम हूँ. तो कहाँ से? सोचो कहाँ से? Actually सोचो मैं कहाँ से कम हूँ? शारीरिक कम हूँ, एक मेरा हाथ पैर कुछ कम है. किस वे में कम हूँ? Mentally कम हूँ. Again, it's your definition. Because आप you are a unique being. You cannot compare the intelligence of Mother Teresa, Lata Mangeshkar, Sachin Tendulkar and Bill Gates. कोई संगीत में अच्छा है, कोई कारीगरी में अच्छा है, कोई खाना बनाने में अच्छा है. तो क्या बुरा है? बॉडी. तो उनकी इंटेलिजेंस क्या करते हैं? What it will do to you? We don't trust them. जो सोचते हैं उन पे हमें भरोसा नहीं होता है. Yeah, but if you don't trust their intelligence, what does it do to you? I mean, do you feel that because of that you are not able to communicate with them? What does doubt do? Fear comes. Again, that fear comes. But basically understand कि जिस दिन we have to understand every person is a unique being. ये सारे जो डाउट्स अपन बात कर रहे हैं ना, सब फॉल्स. कोई भी मतलब की चीज नहीं है. एक्चुअली कोई भी इंसान खराब नहीं है. नो पर्सन. लास्ट टाइम मैंने चक्रों में पूछा था, आप में से कौन से पर्सन जानबूझ के किसी की जिंदगी में जाते हो उसको धोखा देंगे? एक ने भी हाथ नहीं उठाया. आज भी कोई भी हाथ नहीं उठाया. इंटेंशनली एक भी पर्सन नहीं जाता किसी को स्टैप करने, किसी को चीट करने, किसी को धोखा देने. कोई नहीं जाता. जब आप नहीं जाते हो तो ये मल्टीप्लाई हो गया रेशियो. नोबडी इज लाइक दैट. सो अंडरस्टैंड दिस डाउट इज जस्ट अ फियर ऑफ द माइंड. आप जो अंडरस्टैंड, आपकी लाइफ में जो भी पर्सन आया है, he has come because it is a divine union with you. And every person who has come, he has got a specific purpose to come in your life. It is a divine union. आज आपकी जो स्पाउस आपके साथ आई है, आज आपके जो बच्चे आए हैं, आज आपने जो ऑफिस में जॉब किया है, आज आपको जो फ्रेंड्स मिले हैं, एक यूनियन हैज बीन चोजन बाय प्रकृति फॉर यू. एंड एवरी यूनियन इज टीचिंग यू समथिंग. इट इज टीचिंग यू टू इवॉल्व. Maybe that union is teaching that you don't have confidence, you have to learn to speak out and have confidence. Even that is good. Today only I was counseling a couple who was staying apart. But in that, the boy said that, this lady has, how much she has controlled me.
उसने मेरे को जिंदगी में इतना कंट्रोल किया कि 2 साल तक आई केप्ट ऑन टॉलरेटिंग, बट टुडे आई डिसाइडेड आई विल नॉट अलाउ एनीबॉडी टू डिफाइन माई सेल्फ। आई रियलाइज कि मुझे जिंदगी में मेरा वजूद इंटैक्ट रखना है। मैंने कहा उसको थैंक करो, थैंक करो, शी हैज टॉट यू, थैंक करो, somebody has taught you कि जिंदगी भर अब मैं किसी को कंट्रोल नहीं करने दूंगा। लेसन लर्न कर दो, थैंक यू। सो अंडरस्टैंड, ट्रस्ट एंड मिसट्रस्ट, दीज आर ऑल डेफिनेशंस। आपकी जिंदगी में जो भी पर्सन आया है, जो भी यूनियन आया है, यू हैव टू ट्रस्ट दैट यूनियन। वो मेरे फायदे के लिए आया, वो कुछ भी मुझसे ले जा नहीं सकता। लेकर क्या आया था, क्या लेके जा सकता? मैंने जो भी लिया यहीं से लिया, जो भी दिया यहीं को दिया। मैं जो कुछ भी कर रहा हूं सब कुछ यहीं से ले रहा हूं, यहीं से ले रहा हूं। एक गीता का बड़ा अच्छा सार है, पढ़ती हूँ चलो, क्योंकि इसको पढ़ के बड़ी मन की शांति होती है, तब डर नहीं लगता कि हमारा कुछ खो जाएगा। सुनाओ, क्यों व्यर्थ चिंता करते हो, किससे व्यर्थ डरते हो, कौन तुम्हें मार सकता है? आत्मा तो पैदा भी नहीं होती तो मर कैसे सकती है? तुम्हें क्या मरने का डर? यू डिड नॉट चूज टू टेक बर्थ, यू कैन नॉट चूज टू डाई। और आत्मा तो मरती भी नहीं है ना पैदा होती, तो क्यों व्यर्थ डरते हो, क्यों व्यर्थ चिंता करते हो? जो हुआ अच्छा, जो हो रहा है वो भी अच्छा हो रहा है, जो होगा वो भी अच्छा होगा। तुम भूत का पश्चाताप ना करो, ना भविष्य की चिंता करो, वर्तमान चल रहा है। एवरीथिंग इज नाउ। अभी देखो, अभी यू आर फाइन, यू आर सिक्योर, सब कुछ फाइन है। अभी सोचो इस मोमेंट में यू हैव अ फैमिली, घर, जॉब, शरीर, सब कुछ है फाइन। वर्तमान, आई एम हैप्पी, वर्तमान चल रहा है। तुम्हारा क्या गया जो तुम रो रहे हो? तुम क्या लाए थे जो तुमने खो दिया? जब आए थे तो कपड़े भी नहीं थे शरीर, नथिंग। यू आर जस्ट प्लेइंग विद द टॉयज एंड गिविंग देम हियर। सब कुछ ले लेके छोड़ रहे हो यहीं पर। तुम्हारा क्या गया जो तुम रोते हो? तुम क्या लाए थे जो तुमने खो दिया? तुमने क्या पैदा किया जो नाश हो गया? ना तुम कुछ लेकर आए थे, जो लिया यहां से लिया, जो दिया यहां पर दिया। व्हाट इज द ईगो? मैंने इतना किया, उसके लिए इतना लिया, सब कुछ तो दिया, जहां दिया शक्ति आई यहीं से आई। खाली हाथ आए थे, खाली हाथ ही जाओ। जो आज तुम्हारा है कल किसी और का, परसों किसी और का होगा। तुम जो इसे अपना समझकर मग्न हो रहे हो, यही तुम्हारी प्रसन्नता जो है तुम्हारे दुखों का कारण है। जो तुम सोचोगे ना, मेरी फैमिली, मेरा जॉब, मेरी कार, मेरा, दैट इज द रीजन ऑफ योर। With this you realize I am experiencing family, I am experiencing my education, I am experiencing my degree, I am experiencing my job, I am experiencing my car. It is not my car. कल हो सकता है नहीं हो, और कल तो थी नहीं। So understand, the day you realize कि I am only experiencing, हर चीज में एक्सपीरियंस कर रहा हूँ बस। आज एक मूवी थिएटर में गया, मूवी देखी, बाहर आके किसी और में गया, वो देखी। I'm just seeing, I'm hopping between different movies. The day you live that attitude, आपका दुखों का कारण चला जाता है। परिवर्तन जो है संसार का नियम है, जिसे तुम मृत्यु समझते हो वही जीवन है। एक क्षण में तुम करोड़ों के स्वामी बन जाते हो, दूसरे क्षण में दरिद्र बन जाते हो। तेरा मेरा, छोटा बड़ा, अपना पराया, ये जो हमारे जजमेंट्स है ना, जजमेंट्स, they are the cause, and judgments means ego. Ego means separation. जब तक हम खुद को सेपरेट समझते हैं, वी आर इन पेन। आज सेपरेशन ही पेन है। सबसे बड़ा दुख है सेपरेशन, और सबसे बड़ा जो खुशी है वो है लव। प्यार जो है वो सबसे बड़ी खुशी है। और हमारे जीवन भर की जो हमारी जो तड़पन है ना, इज टू रियलाइज लव, इज टू रियलाइज दैट एक्चुअली वी आर ऑल वन। ना ये शरीर तुम्हारा है, ना तुम इस शरीर के हो। ये अग्नि, जल, वायु, पृथ्वी, आकाश से बना यही शरीर इस मिट्टी में मिल जाएगा, परंतु आत्मा तो स्थिर है। सो दिस इज द थिंग कि अपनी सब चीज को भगवान को अर्पण करो। ओके, सो जितना हम इस भाव से चलेंगे, सो वी विल स्टार्ट फाइंडिंग अ रिलीज।
और जैसे जैसे आप रिलीज करते जाओगे, यू विल स्टार्ट एलिवेटिंग।